Okay, can you guys see everything okay? Yes, Good, we good. can. Excellent. Well, we will get started then. Glad to see everybody out today. Okay, let me move me. We'll start with this again. Remember, the Bible is a collection of 66 books आए हम दोबारा से इसको शुरू करते हैं और याद रखें कि बाइबल मुकद्दस written by, 66 किताबों का मजमूआ है। written by around 40 different authors ये 40 मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने तहरीर की over a 1500-year time span और 1500 साल के से ज्यादा अरसा में ये लिखी गई on three different continents. और ये तीन मुख्तलिफ बरा आज़मों में लिखी गई। This is the most important thing for you to remember ये आपके लिए सबसे अहम बात है जो आपने याद रखनी है। because it gives validity to the scriptures ये आपको सहूलत देगी, मददगार होगी अ, सहीफों को समझने के लिए, as well as it will help you understand them. और ये आपको समझने में भी मदद करेगी। So today we're going to talk about how the Bible was written and preserved. Oh, I think you missed this slide. Um, Can you check that? Uh, did I send you the wrong one? I don't know. Let me go look because I didn't check it. Uh, just wait, let me send you the. Yes, you sent me the wrong one. Oh, sorry, just give me. No problem. Meantime, let's take this down. Please check now. Yes. I just send you. Okay. Take just a minute.
Still hasn't come through. Did you get email? Not yet. Oh. It's still nothing. Still not. Oh, just let me check it. Let me send it to. Just check it. I send on Messenger now. Okay. Still not there. Oh, you sent it on Facebook. Yeah, Oh, okay. Hold on one second. I gotta pull something else up to get that. email twice, but No, now that's send on Messenger. fine. I was looking in the email, is why I wasn't seeing it. All right. And that is loading. Okay, let's try this. How do I get this? There we go. There we go. Okay. Give me just a minute. I have it now. Okay. Okay. Let's try this one. Looky there. We made it. Yeah. All right. Sorry about that. So, इसके लिए मैं माजूद what we are talking about today is how was the Bible written and how was it preserved? आज हम इस बात के बारे में बात करने वाले हैं कि ये बाइबल मुकद्दस किस तरह से लिखी गई और इसको किस तरह से महफूज किया गया। We are dealing with ancient documents. हम कदीम जो हैं कागजात उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। And so the preservation of it matters.
जो हमारे पास मौजूद है। Because when we think about the Bible, we think of it as a book. जब आप बाइबल के बारे में देखेंगे तो ये आप एक किताब के बारे में देखेंगे, Because that's how we get it today. क्योंकि ये इस तरह से है कि हम इसको अब किस तरह से देखते हैं या हमारे पास ये किस सूरत में मौजूद है। But that's not how it started. और आए हम इसको देखते हैं। So we are going to answer 4 questions. यहाँ 4 सवाल हैं जिनको आज हम देखेंगे। What was it written on? किस पर लिखे गए? What language was it written in? किस जुबान में ये लिखे गए? Who copied it and how careful were they? किसने इसकी कॉपी किया और इसको कैसे इसने कितने मुख्तात अंदाज से किया? And why this matters for trusting the Bible. और बाइबल पर भरोसा करने के लिए ये क्यों अहम है? Okay. Everybody get that written down. We're going to move on. आओ आप ये लिखें, फिर हम आगे चलते हैं। Good. So, the first thing to understand is in the earliest writings of anything, it was written on stone or clay. जो पहली चीज इन लिखी हुई किताबों के बारे में है वो ये है कि ये पहले पत्थर और मिट्टी के ऊपर लिखे गए। In Exodus 31 and verse 18, and if you'll read that, Sunil. खरूज के 31 बाब की 18 आयत में लिखा है, और जब खुदावंद को इस सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थीं। So this is in reference to the 10 commandments. ये 10 अहकामात के बारे में है which God had given to Moses. जो खुदा ने मूसा को दिए। It was written with his own finger. ये खुदा की खुद की उंगली से लिखे गए on 2 different tablets of stone. और ये 2 पत्थर की लोहों पर लिखे गए। So this is just an example, but this shows you that this was a common method at that time. ये एक मिसाल है आपको बताने के लिए कि ये आम तरीकाकार था किसी भी चीज को लिखने का। And so you can find these in archaeology. आप जब आर्कियोलॉजी को देखेंगे तो वहां आपको इसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा। Of different writings written in stone. कि आपको बहुत सी ऐसी लिखी हुई चीजें मिलेंगी जो पत्थर पर लिखी हुई है। Now I'm not implying that all the Bible was written in stone at all. बाइबल मुकद्दस सारी की सारी जो है वो पत्थर पर नहीं लिखी गई। The Israelites were on the move at this time period. इस्राएली जो थे वो वक्त के साथ इसमें तब्दीली लाते गए। And it had been very difficult to have a bunch of writings in stone to carry with them. ये बड़ा मुश्किल होता कि अगर आपके पास मुख्तलिफ लिखी हुई किताबें होती और आप उनको पत्थर पर लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते। But this was one method. लेकिन ये जस्ट एक तरीकाकार था उस वक्त में। Another thing they would use were clay tablets. जो अगली चीज है वो मट्टी के चीजें हैं, मट्टी की लोहे हैं। So archaeologists have discovered tens of thousands of these. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हजारों लाखों की तादाद में ऐसे मट्टी की लोहे जो हैं वो दरियाफ्त की हैं that are from the time period of Moses. ये मूसा के वक्त की बात है। And these are just a couple examples of that. ये जो आपके सामने है आप देख सकते हैं, ये चंद मिसाल के तौर पर आपके सामने हैं। One specific example is this. एक खास जो इसमें है वो ये आपके सामने है। This is known as the Mesha Stele. ये मेशा स्टीला के नाम से जाती है। It's dated back to about 840 BC. ये 840 के बाद कबल अज मसीह
की है। In this tablet, it mentions a king by the name of Balak. ये एक बादशाह की इसके बारे में लिखा है जिसका नाम देला था। You find a story about King Balak in Numbers 22 through 24. ये जो है 22 से 24 बात में के हवाले से ये लिखी गई है और इस बादशाह के हवाले से। What makes this so important ये बहुत ही अहम है is outside of the Bible, कि बाइबल मुकद्दस से बाहर is that we didn't have any evidence of a King Balak ever existing. कि हमें किसी और बादशाह का कोई ऐसा सबूत मिले जो बाइबल से ताल्लुक रखता हो। When they discovered this, जब ये दरियाफ्त हुआ, it confirms what was written in the Bible. ये इस बात की तस्दीक इसमें से मिली कि ये बाइबल मुकद्दस में लिखा गया हुआ है, It also matters उसका हिस्सा है। हम इसको भी जानते हैं is that many skeptics कि बहुत से ऐसे हिस्से claim that writing didn't exist at the time of Moses. जो मूसा के वक्त में जिनकी मौजूदगी नहीं थी, But this proves that it did. और ये जो है ये साबित करता है कि उस वक्त में भी चीजें मौजूद थी, लिखी हुई। So another type of document that we find are what are called papyrus scrolls. एक और जो उससे जदीद चीज थी लिखने के लिए वो पपायरस के तमार थे। Most of the Old Testament was written on papyrus. पुराने अहदनामे का ज्यादातर हिस्सा जो है वो पपायरस के ऊपर लिखा गया। They made papyrus from the reeds on the Nile River. ये जो थे पपायरस एक पौधे से बनाए जाते थे जो दरिया के किनारे लगता था। And so they would glue many of these sheets together ये उनको काट कर उसकी मुख्तलिफ जो थे शीट्स बनाते थे into very long scrolls. और बहुत बड़ी उसकी वो हो जाती थी, Sometimes as long as 30 feet. और ये बनाते बाजों का 30 फुट लंबी तक हो जाती थी। In Jeremiah 36 and verse 2, यर्मिया 36 बाब की 2 आयत जब हम देखते हैं कि Go ahead. किताब का एक तुमार ले और वो सब कलाम जो मैंने इन इसराइल और यहूदा और तमाम अक़वाम के खिलाफ तुझसे किया उस दिन से लेकर जब से मैं तुझसे कलाम करने लगा, यानी यूसिया के अयाम से आज के दिन तक उसमें लिख। So you see that Jeremiah took a scroll and wrote. आप यहां देख सकते हैं कि यर्मिया को तुमार लेने के हवाले से कहा गया है। This is an example of that. ये आपके सामने पपायरस की एक मिसाल है। And you can kind of see where they would put these sheets together and then they would be rolled up. आप इसमें शायद देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ जो थी जो हिस्से हैं उनको इकट्ठा करके बनाया गया है। So most of the Old Testament was written in papyrus. जो ज्यादातर पुराने अहदनामे का हिस्सा है वो पपायरस पर लिखा गया है। Later, they began to use what's known as parchment. इसके बाद पर्चमेंट जो जानवरों की खाल होती थी Because उसको इस्तेमाल करने लगे। papyrus decayed very easily. पपायरस जो था वो हमें बड़े आसानी से खराब हो सकता था। Papyrus was made of animal skin. लेकिन पर्चमेंट जो है वो जानवरों की खाल से बनाया जाते थे। That they would treat and it would become almost like paper. और ये इस पर जब वो काम करते तो ये पेपर की सूरत इख्तियार कर लेता था। So in 2 Timothy 4:13, दूसरे तिमोथियस के 4 बाब की 13 आयत जब देखते हैं तो लिखा है, जो चौगा मैं तराउस में कुरपस के हाथ छोड़ाया हूं, जो जब तू आए तो वो और किताबें खास कर
रिक के तोमार लेते आइयो। So you see that Paul told Timothy to bring the parchments. ये जो रिक के तोमार है ये पार्चमेंट हैं। This is a reference to that type of thing. ये इस तरह की चीजों पर लिखे जाते थे, यानी चमड़े के। So how they made parchments उनको ये कैसे पता था कि ये पार्चमेंट हैं? is they would soak animal skins in lime कि ये जो जानवरों की खाल है उसको साफ करते थे, to remove all the hair. उनके सारे बाल साफ कर देते थे। It was usually sheep, goat, or calf. ज्यादातर ये भेड़ या गाय की खाल होती थी। Then they would stretch it, वो उसको खींचते थे, तनाव देते थे, and then they would scrape them, और उसको खुश्क करते थे, and then they would have them on these frames to dry. और उसको वो एक तरह के सांचे में डालकर वो उसको सुखाने के लिए रख छोड़ते थे, Turning them into something like paper. और उसको एक कागज की शक्ल देने की वो कोशिश करते थे। And this is an example of a parchment. ये आपके सामने पर्चमेंट की एक मिसाल है। Okay. The last is what's known as a codex. इसके बाद कोडेक्स आ गई, जिसको वर्कों वाली किताब या जिल्दबंद कहा जाता है, जो आज हमारे पास है। And this would be like a modern book that we have today. ये उस वक्त की बड़ी जदीद किताब थी। It was Christians who pioneered this concept. जो मसीही इस काम के अवलीन थे या पेशरो थे। The first Bible that was bound as a book जो पहली बाइबल जिसको बतौर किताब जमा किया गया, wasn't until around the 3rd or 4th century AD. ये तीसरी और चौथी बाद अज़ मसीह की बात है। Before that, it was just all scrolls. So this is the Codex Sinaiticus. ये किताबे सीना है, ये आपके सामने। This is one of the earliest complete copies of the New Testament we have. ये जो सबसे पहली या सबसे पुरानी कह लें, ये हमारे पास कॉपी है इसकी, जो मुकम्मल सूरत में है। This has been very well preserved and is still held today. ये बड़ी अच्छी हालत में आज भी महफूज है। So you can see how the writing and what was written on changed over time. आप इस बात को देख सकते हैं कि लिखने का जो तरीका कार है वो वक्त के साथ बदलता गया। And we still have books like this today. और हमारे पास आज भी इस तरह की कुतब जो मौजूद हैं। So now let's talk about the different languages of the Bible. आओ अब हम बात करते हैं बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ जुबानों के बारे में। The Bible was written in 3 languages. बाइबल मुकद्दस 3 मुख्तलिफ जुबानों में लिखी गई। So it was Hebrew, ये इब्रानी जुबान है, which is what most of the Old Testament was written in. जिसमें ज्यादातर पुराना अहदनामा लिखा गया है। You also have Aramaic, हमारे पास अरामी जुबान भी है, which is just a couple of portions in the Old Testament. क्या लें कि इसके कुछ हिस्से हैं जो पुराने अहदनामा में अरामी जुबान में हैं। So Daniel's chapter 2 through 7, दानियल के दूसरे चैप्टर से लेकर 7वें बाब तक, and Ezra chapter 4 through 7, और अज़रा के चौथे बाब के 7वें बाब तक,
were the sections written in Aramaic. ये अरामी जुबान में लिखे गए हैं। Everything else was written in Hebrew. बाकी का जो है वो इब्रानी जुबान में लिखा गया है। The last language was Greek, आखिरी जुबान यूनानी है, which is what the entire New Testament was written in. जो कि जिसका जो तमाम नया अहदनामा है वो इसी जुबान में लिखा गया है। Now, I'll say this now, but it doesn't really matter for your understanding. ये मैं आपको बता रहा हूं आपकी समझ के लिए, लेकिन ये इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। That there is some evidence कुछ ऐसे सबूत मिले हैं that some of the Gospels and parts of the New Testament कि नए अहदनामा के कुछ हिस्से may have actually been written in Hebrew वो इब्रानी जुबान में भी हैं and then translated into Greek. और उनका तर्जुमा जो है वो यूनानी जुबान में किया गया। But the common thought today लेकिन एक आम फहम बात जो आज है is that Greek was used exclusively for the New Testament. कि जो यूनानी जुबान है वो नए अहदनामा की जुबान है। So, why Hebrew? It was the language of Israel. बात यह है कि इब्रानी ही क्यों, क्योंकि ये बनी इस्राइल की जुबान है। They spoke this exclusively in the nation of Israel. ये इस जुबान को वो अपने मुल्क में अपनी कौम में बोला करते थे। So, an example that is still used today is the word shalom. जैसे आज हम शालोम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, Which means peace, wholeness, and completeness. इसका मतलब है अमन सलामती। Now, Aramaic अब अरामी की बात करें, was a common language that was spoken in Jesus' day. यसु मसीह के दौर में ये अरामी आम जुबान थी जो बोली जाती थी। But part of the reason why Daniel and Ezra जब हम दानियल और अज़रा को देखते हैं, had portions written in Aramaic उसके कुछ हिस्से जैसे हमने देखा कि अरामी जुबान में लिखे गए हैं, may likely have to do with आप इसको इस तरह से देख सकते हैं the fact that they were in what's known as the Babylonian exile. कि ये बाबल की जुबान थी और अक्सर लोग बोलते थे। And if you don't know what that is, we'll talk about it later. हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। But Babylon had taken over Israel बाबल के लोग, बाबल ने इस्राइल को अपने कब्जा में ले लिया, इस्राइलियों को, and brought them to Babylon. और उनको बाबल में ले गए अपनी असीरी में। So, an example of Aramaic being used जो अरामी जुबान का इस्तेमाल की एक मिसाल हम देखते हैं in Mark chapter 15. मरकस 15 बाब की 34 आयत में लिखा है, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि एलोही एलोही लमा शबकतनी, जिसका तर्जमा है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। So, that phrase, Eloi, Eloi, lama sabachthani, एलोही एलोही लमा शबकतनी is actually Aramaic. हकीकत में ये अरामी जुबान है। It is a quote from Psalms chapter 22 and verse 1. ये बिल्कुल खास अरामी जुबान है। So, it just gives you an example of that. ये आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पर दी गई है। Now, why Greek in the New Testament? अब बात यह है कि नया अहदनामा यूनानी जुबान में क्यों। During the life and time of Jesus and the period of the New Testament, यसु मसीह के दौर में जब नया अहदनामा लिखा जाने वाला था, Israel was under Roman rule. इस्राइल जो था वो रोमी सल्तनत के मतहत था, And Greek was the common trade language in the Roman Empire.
और रोमी सल्तनत में ये आम तजारती जुबान थी, यूनानी जुबान। Now, this is one of the most universal languages in the world. ये उस वक्त कह लें कि बैनुल अक़वामी जुबान थी। And so, since the gospel was spreading out of the Roman Empire, चूंकि जो बाइबल मुकद्दस का नया हिदनामा है वो रोमी सल्तनत के दौर में लिखा गया, it was written in the language common to the people. इसलिए ये जरूरी था कि ये उस जुबान में लिखा जाए जो आम लोगों को समझ में आए। So, these were the three languages used for what makes up the scriptures. ये इसलिए ये दो जुबानें हैं जिन पर जिनके जो कलाम के लिए इस्तेमाल हुई। And since then, it's been translated into hundreds of different languages. और बाद में तो जब हम देखते हैं तो ये कई सौ जुबानों में इनका तर्जुमा हो चुका है। So, how was it copied? अब सवाल ये है कि इनकी नकल कैसे तैयार की जाती थी। We want to know about the copyist. हम देखेंगे कि नकल नवीस कौन थे। And they were known as the scribes and the Masoretes. हम देखेंगे कि कातब कौन थे और मासूरी कौन थे। So, the original writings जो हकीकी असल जो लिखी हुई किताबें थी, which are labeled as autographs, कह लें कि वो जिनको बतौर ऑटोग्राफ आप कह सकते हैं, they no longer exist. वो आज मौजूद नहीं है। We don't have the original writings of Moses, हमारे पास मूसा के हाथ की लिखी किताब मौजूद नहीं है जो उसने लिखी, any of the prophets, किसी और नबी की, or the Apostle Paul. और ना ही पौलुस रसूल की अपने हाथ की लिखी। All we have are copies of those originals. जो आज हमारे पास है वो उन असल किताबों की कापियां हैं। So the question comes down to is, were the copies accurate? तो अब सवाल ये है कि ये कापियां बिल्कुल दुरुस्त कैसे हैं। And this is where understanding how important the Jewish scribes were. इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि ये जो यहूदी कातब हैं इनके बारे में जानना। So the Jews treated scripture as sacred beyond comprehension. यहूदी सहीफों को फहम से बालातर समझते थे। They did not paraphrase or improve the text. उन्होंने ना तो नुस्खों की तशरीह की और ना ही मतन में कोई तब्दीली लाई। They copied everything letter by letter. उन्होंने लफ्ज ब लफ्ज उसको कॉपी किया। They even counted the letters. उन्होंने यहां तक कि उन्होंने अल्फाज को गिनती किया। And so they had some different rules that they went by. तो उन्होंने मुख्तलिफ कानून इसके लिए शामिल किए। One was whenever they came to the name of God, एक उसमें बात ये थी कि जब भी खुदा का नाम आए, they would get up and do a ritual washing before they wrote his name. उनके लिए ये जरूरी था कि वो उठे और अपने हाथ धोएं और खुदा का नाम लिखने से पहले। The other rule was they could not write anything from memory. दूसरा कानून ये था कि वो अपनी याददाश्त से कुछ नहीं लिख सकते थे। They just went letter by letter. उन्होंने हर्फ बा हर्फ लिखना था। And then if they made a mistake, और अगर किसी लफ्ज की कोई गलती हो जाती, or there was any flaw at all in the copy that they wrote, और अगर कोई भी हरफ गलत हो जाता, they would destroy it. तो वो पूरा हिस्सा जो था, वो पूरी किताब उसको वो तलफ कर देते थे, जाया कर देते थे। Mostly by burning it. ज्यादातर ऐसा होता था। So to be a Jewish scribe, तो जब हम यहाँ यहूदी कातबों की बात करते हैं या मुसन्नफीन की, was a very noble profession.
ये बहुत ही ज्यादा इज्जतदार जो शोभा था, and a job they took incredibly serious. और वो इसको बड़ी संजीदगी से अपनी जिंदगी में लेते थे। They wanted to make sure they preserved अब बात ये है कि उन्होंने इसको महफूज किस तरह से बनाया, the scriptures as they were originally written. कि वो जो सहीफे लिखे गए वो आज भी असल हालत में हैं। Now on to the Masoretes. आए अब मसूरी कातब के बारे में देखते हैं। The Masoretes were Jewish scribes and scholars ये यहूदी जो थे, प्रोफेशनल जो लोग थे, पेशावर मुहाफिज थे, in the 6th to 10th centuries AD. ये छठी से 10वीं सदी बाद मसीह के लोग हैं। And so they set the standard for Hebrew pronunciation and grammar. उन्होंने एक मेयार जो है वो सेट किया इब्रानी जो तर्जुमों का, उनकी कापियां बनाने का। They made it their life's work उन्होंने अपनी जिंदगी का ये काम किया कि इसकी तहरीरें बनाई, to protect and guard, उसकी हिफाजत करें, as well as transcribe the writings of the Old Testament. और उसको महफूज रखते हुए उसको मजीद आगे बढ़ाएं। So they were guardians of the scriptures. ये मुहाफिज थे कलाम के, And their method was incredibly strict. और उनका तरीकाकार जो था वो बहुत ही सख्त था। They counted every word, उन्होंने हर एक लफ्ज की गिनती की, they counted every letter, उन्होंने हर एक हरफ की गिनती की, and they even counted the middle letter of every book. हत्ता कि उन्होंने किताबों के दरमियानी लफ्ज देखे। If one letter was wrong, अगर कोई एक लफ्ज आगे पीछे हो जाता the manuscript was destroyed. तो वो जो पूरा तोमार था उसको तलफ कर दिया जाता था। So this wasn't just about religious devotion. ये सिर्फ लिखने और कॉपी बनाने की या उसकी गलती की बात नहीं, This was a preservation system. ये महफूज करने का एक तरीकाकार था, And निजाम था। it's why we can have so much confidence in the scriptures we have today. ये वजह है कि आज हम बड़े ही पूरे इत्मीनान हैं कि खुदा का जो कलाम हमारे पास है वो बड़ा ही महफूज और दुरुस्त है। I'll give him a second to finish writing all of this down. आए हम मजीद आगे देखते हैं। So this is an example. It's called the Aleppo Codex. ये एक एलोपो तोमार है जो मिसाल है आपके सामने, एक बतौर नमूना है। It's named after the Syrian city of Aleppo. ये आप देखें कि एक तरीकेकार से लिखी गई चीज है आपके सामने जिसको लिपो तोमार कहा जाता है। Which is where it was kept. ये जो मौजूद है, But this gives you an example of what these writings would have looked like. ये बतौर नमूना आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसी लिखी हुई चीजें वो किस तरह से दिखाई देती थी। They took great pride in what they did.
ये यूनानी जुबान में उसको तहरीर किया गया है। So now we're going to talk about the Dead Sea Scrolls. अब आए बहरा मुर्दार के तुमारों के बारे में देखते हैं। The Dead Sea Scrolls were the greatest discovery जो बहरे तो मुराद के मुर्दार के तुमार हैं, ये बहुत बड़ी दरियाफ्त है। maybe of all time. इसमें हर तरह के तुमार मौजूद हैं। So they were discovered in 1947. 1947 में ये दरियाफ्त हुए They were found in Qumran. और ये बहरा मुर्दार में इसको पाए गए। It was a shepherd who found them. एक चरवाहा था जिसको ये मिले। There's roughly 1,000 ancient Jewish manuscripts और इसमें हजारों जो है वो कदीम तुमार पाए जाते हैं या तुमार मिले that date from about 250 BC to 68 AD. ये 250 कबल अज मसीह से लेकर 58 एडी तक के हैं। 68 एडी The time period they were आफ्टर दैट बाद अज मसीह के। the time period they were discovered was between 1947 and 1956. ये 1947 से लेकर 1956 में दरियाफ्त हुए And they contain the oldest known fragments of the Hebrew Bible. और इसमें जो सबसे पुरानी कदीम इब्रानी बाइबल मौजूद है, as well as several other types of writings. और इसमें और भी बहुत सी चीजें मौजूद हैं। They would talk about the different religious things and political things that were going on, इसमें बहुत सी मजहबी और सियासी बातें भी मौजूद हैं, as well as the social life of what's known as the Second Temple period. आपको जो आपकी सोशल जो जिंदगी है इर्द गिर्द की वो भी उसमें मौजूद मिलती है, खास तौर पर हैकल के हवाले से। They were put there by a group of priests known as the Essenes. जहां पर एक पेशवाओं का गिरोह था जिसको एशियन कहते थे। The Essenes were a group of priests ये एशियन जो पेशवाओं का एक गिरोह था who fled Jerusalem जो यरूशलेम से आए थे because of the religious persecution that was going on. क्योंकि उस वक्त वहां पर मजहबी एजार रसानी बहुत ज्यादा थी। So in the New Testament, you read about different groups of people. आप नए अहदनामा में मुख्तलिफ मजहबी लोग ग्रोहों के बारे में सीखते हैं। People like the Pharisees and the Sadducees. फरीसियों और सदूकियों के बारे में जैसे आप देखते हैं। The Essenes were another group during that time. असीन भी एशियन भी वहां पर या असीनी भी वहां पर एक ग्रोह के तौर पर मौजूद दिखाई देते हैं हमें। But because they wanted to maintain purity, क्योंकि वो इस बात में बड़े खालिस रहना चाहते थे and the Pharisees and Sadducees were kind of taking over at that time, और फरीसी और सदूकी जो थे वो काबज थे या इख्तियार में थे उस वक्त। they fled Jerusalem and ended up in Egypt. और वो यरूशलेम में और मिस्र में भी And they stored these scrolls in Qumran. तो उन्होंने इन तुमारों को जो था उनको महफूज किया। This is an example of one of the scrolls that was found. ये आपके सामने एक नमूना है उस वक्त जो तुमार मिले उनमें से एक। It dates to about 125 BC. ये 125 बाद कबल अज मसीह का है। This is the great Isaiah scroll. ये यसाया का बहुत बड़ा तुमार है। What is so important about this discovery और ये क्यों जरूरी है इस दरियाफ्त के बारे में जानना is this is a complete copy of the scroll of Isaiah,
क्या ये यशाया की मुकम्मल कॉपी है? That is about 1,000 years older ये तकरीबन हजारों साल पुराना है। than our previous oldest copy. आप ये कह सकते हैं कि सबसे पुराना And ये कॉपी है। when they compared this scroll to the oldest copy they had before, आप इसको जो सबसे पुरानी उनके पास मौजूद है उसके साथ इसका मुवाजना कर सकते हैं। they were almost identical. आप जब उनको देखेंगे कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखते हैं, Even though they were written 1,000 years apart. खता के ये हजारों साल पुराने हैं एक दूसरे से। And it shows what great length that they went to और ये जाहिर करते हैं कि ये बेशक पुराने हैं लेकिन एक जैसे हैं। to preserve the original writings. और ये हमें बताते हैं कि जो असल जुबान में ये जो लिखे गए हैं बिल्कुल महफूज हैं। So why does this matter? तो बात ये है कि ये क्यों इतना अहम है। Is one of the arguments that skeptics make एक बड़ा ज्यादा जो कह लें कि दलील जो पेश की जाती है is that the Bible has been changed over time. कि बाइबल मुकद्दस जो है वो बदल गई है। But we can clearly demonstrate जब हम इस बात को देखते हैं या बयान करते हैं that the Bible that we have today कि बाइबल मुकद्दस जो हमारे पास आज मौजूद है was well preserved कि उसको बिल्कुल महफूज रखा गया है and is still true to the original text. और ये जो आज हमारे पास मौजूद है ये असल के बिल्कुल मुताबिक है। So it gives us confidence in the Bible that we hold in our hands. इस वजह से हमें बाइबल मुकद्दस पर बहुत ज्यादा एतमाद है। So, are there any questions? अभी कोई आपके पास सवाल है? कोई सवाल? नो, नो क्वेश्चन। No questions. Okay. या Okay. Well, wonderful. Well, thank you guys. I appreciate you. थैंक यू वेरी मच। You guys have a blessed day. वो बोल दिया करो। Thank you.